Hello students, I am Sunanda Mani. Today I am going to take up the question answers of the chapter Evans tries an O level. First question, what kind of a person was Evans? Evans किस तरह का इंसान था? Evans एक habitual jail breaker था, कंजेनिटल क्लेप्टोमैनिक था, यानी कि बचपन से ही उसे चीज़ें चुराने की आदत थी। वह बहुत ही चालाक और समझदार किस्म का इंसान था। उसे ह्यूमन नेचर की बहुत ज़्यादा पहचान थी और इसीलिए वह जेल के ऑफिसर्स को समझ पाया कि उनकी क्या वीकनेसेस हैं और उसने बहुत ही चालाकी से फिर से प्लान बनाया और वो वहाँ से भाग निकला। So Evans was a very clever and an intelligent prisoner who had a record of breaking jail thrice on earlier occasions. He was a kleptomaniac, congenital kleptomaniac, who could understand and analyze the human character very cleverly. And that was the reason he could understand the weaknesses of Jackson and Stephens and the governor. And he had lots of friends, so he connived with his friends and made possible another jailbreak for the fourth time. What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? Smooth conduct, that means बहुत ही स्मूथ तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के एग्जामिनेशन हो जाए, इसके लिए जेल अथॉरिटीज़ ने क्या क्या इंतज़ाम किए, क्या क्या प्रिकॉशंस ली। जेल अथॉरिटीज़ बहुत ही विजिलेंट थी क्योंकि उन्हें पता था कि एवंस जो है वो फिर से जेल तोड़ के भाग सकता है। इसलिए गवर्नर ने खुद सब ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दी और पर्सनली एक एक चीज़ को मॉनिटर किया और उसने अपने सीनियर ऑफिसर जैक्सन और एक नया रिक्रूट था स्टीफन्स, उसे लगाया कि वे उस कमरे को अच्छी तरह से सर्च करेंगे जहाँ पे एग्ज़ाम होना था। वहाँ पे कोई भी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे सिजर्स, नेल काटर, रेज़र वगैरह, कोई भी ऐसी तीखी चीज़ जिससे कि एवंस अपने आप को या जो इन्विजिलेटर आ रहा है उसे कोई नुकसान पहुंचा सके। और वहाँ पर कम्युनिकेशन के सारे साधन कट ऑफ कर दिए गए थे और जितनी फ़ोन कॉल्स आ रही थी वो खुद उन्हें अटेंड करता था और उसने एग्जामिनेशन बोर्ड में भी खुद बात करी थी। So the jail authorities were extra vigilant this time because they were very well aware of the fact that Evans was a very clever prisoner and he had a reputation of breaking the jail earlier on 3 occasions and he could do same thing anytime. So they were very cautious, and for this the governor instructed his senior officer Jackson and the new recruit Stephens to personally check the room where the examination was to be conducted. All the instruments which Evans had with him, for example, he had nail filer, nail cutter, razor, all the sharp instruments or the weapons that he had with him were taken away and all the means of communication from that room were cut off. The governor was himself taking calls and he was personally in touch with the secretary of the examination board so that Evans could not escape. Why did Evans select German for his O-level examination? Evans selected German for his O-level examination because he was the only candidate offering that language and he had connections with the German tutors outside the jail who could help him escape. So Evans ने German language क्यों ऑप्ट करी एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि वही सिर्फ एक कैंडिडेट था जो जर्मन पढ़ता था और उसके बाहर जेल से बाहर जर्मन पढ़ाने वाले लोगों के साथ लिंक्स थे जो उसकी प्लान को सक्सेसफुल बना सकते थे। What queries did the Secretary of Examination Board make from the governor before conducting the exam?
एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने गवर्नर से क्या क्या सवाल पूछे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। उसने यह पूछा कि आपका जो प्रिजनर है, जो कैदी है, वो कैसा इंसान है। उसका मतलब था कि वो वायलेंट नेचर का तो नहीं है, कहीं जो हमारा इन्विजिलेटर आएगा उसकी जान को तो कोई ख़तरा नहीं है। प्लस उसने ये पूछा कि वहाँ पे उसके बाहर के लोगों से बातचीत करने का कोई साधन तो नहीं है। एंड वो चाहता था कि ये एक अलग कमरे में एग्ज़ाम हो जहाँ पे सिर्फ एवंस हो, इन्विजिलेटर हो और वो पहरे के अंदर हो। So the queries made by Secretary of the Examination Board from the governor before conducting the exam were that he wanted to know about the nature of the prisoner Evans because he did not want to take any risk with the life of the invigilator. He wanted to make sure that he was not of any violent nature, and also he wanted all means of communication to be cut off from that room where Evans was to take his exam. What is the significance of Evans' statement, "I may surprise everybody"? I may surprise everybody, Evans बोलता है, इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है? जब उसका ट्यूटर उसे बोलता है कि तुम तो बहुत मुश्किल से पास होगे, तो एवंस बोलता आई मे सरप्राइज एवरीबडी। उसका मतलब था कि मैं शायद सबको हैरान कर दूंगा, और ट्यूटर समझता है कि वो अपने अच्छे रिजल्ट्स के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सबको हैरान कर देगा, पर एक्चुअली में उसका ये मतलब था कि वो सबको हैरान कर देगा मीन्स वो सबको चकमा दे देगा कि वो फिर से यहाँ से भाग जाएगा। उसकी इंटेंशन कुछ और थी और वो बोलता उसे किसी और तरीके से है। So the significance of Evans' statement, "I may surprise everybody," is that when the tutor told him that he was not well prepared and he would not get through, so Evans said, "I may surprise everybody," showing that he may surprise everybody with his good performance, but actually he meant that he may surprise everybody by escaping from the jail. Why did McClary carry a small semi-inflated rubber ring? मैक्लेरी ने एक inflated means फूली हुई, थोड़ी सी फूली हुई रबर की रिंग साथ में क्यों ली? उसने इसलिए ली क्योंकि उस रबर के रिंग में पिग का ब्लड था, जिसे वो एवंस को दे के ये शो करना चाहता था कि वो इंजर्ड है और ये उनकी एस्केप प्लान का एक पार्ट था। और वो कहता ये है कि उसे पाइल्स की प्रॉब्लम है और ये रिंग उसे टॉयलेट सीट पे बैठने में हेल्पफुल रहेगी। सो मैक्लेरी कैरिड अ स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग बिकॉज ही वाज कैरिंग अ पिग्स ब्लड इन दैट रबर रिंग टू स्पिल ओवर एवंस एंड शो हिम एज एन इंजर्ड मैन, बट ही प्रिटेंडेड दैट ही वाज कैरिंग दैट inflated rubber ring because he was suffering from piles and that ring could help him sit on the toilet seat comfortably. Why did Evans drape a blanket around his shoulder? Evans ने अपने shoulders के आसपास blanket क्यों लपेटा? उसने इसलिए लपेटा क्योंकि मैक्लेरी के बाल छोटे थे और वो उस कंबल के अंदर अपना मुंह छिपाकर, जब उसे स्टीफन्स नहीं देख रहा था, वो उस कंबल के अंदर अपना मुंह छुपाकर अपने बाल काटना चाहता था और अपना फ्रंट कॉलर वगैरह एडजस्ट करना चाहता था जिससे वो मैक्लेरी की तरह ही लगे। So Evans draped a blanket around his shoulders because he wanted to clip his hair in that blanket when Stephens was not looking at him, and also he wanted to adjust his outfit to look like an injured McClary after the exam. Reflecting on the story, what did you feel about Evans having the last laugh? स्टोरी के ऊपर विचार करते हुए आपको एवंस की लास्ट हंसी से क्या समझ में आता है? हमें उसकी आखिरी हंसी से ये समझ में आता है कि वो एक वाकई में बहुत ही चालाक और समझदार किस्म का इंसान था, जिसे ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से समझना और एनालाइज करना आता था।
उसने प्रिजन ऑफिसर्स की हर एक वीकनेस को, हर एक कमज़ोरी को बहुत अच्छे से समझा और उन्हीं वीकनेसेस पे खेलते हुए उसने अपना प्लान इतने अच्छे से बनाया कि उसकी एग्जीक्यूशन में, उसकी प्लान की एग्जीक्यूशन में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। लास्ट में आके जब गवर्नर उसे पकड़ता है और गवर्नर को लगता है कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, उसके बाद भी वो उसे सरप्राइज़ कर देता है। और वो जब गवर्नर को ये हंस के दिखाता है कि हाँ अब तो मैं शायद तुम्हारे पास ही रहूँगा, या तुम्हारे पास अब मैं नेक्स्ट टाइम पे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं रहूँगा, तो उसका मतलब रियलिटी में यही था कि वो वहाँ पे नहीं होगा और वो वहाँ से भाग जाएगा। सो रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टोरी वी फील अबाउट एवंस हैविंग द लास्ट लाफ दैट ही वाज एक्चुअली अ वेरी क्लेवर and a witty prisoner who had a master plan to escape from the prison, and he could outwit all the officers and he could play on their weaknesses, and when he laughs in the end and tells them that he might not be there to take the next exam, he actually meant it. He actually meant that he would escape now only and would not be in the prison to take the next exam. Why were 3 minutes before the examination very crucial? Examinations खत्म होने से 3 मिनट पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्यों थे? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट थे कि उन 3 मिनट्स में गवर्नर को एक फेक कॉल आती है जो कि एवंस का कोई अकम्प्लिस, कोई साथी ही कर रहा था, और उससे उन्होंने वैन मंगवाने की बात करी। तो सारा आइडिया उसके पीछे ये था कि गवर्नर और बाकी की प्रिजन अथॉरिटीज़ को बिज़ी कर दिया जाए ताकि एवंस वहाँ से आराम से निकल जाए, और ये सारा उसके एस्केप प्लान का एक पार्ट था। So 3 minutes before the end of the examination were very crucial because at that time governor was made to listen to a call wherein a van was called, and that was all a part of his master plan, and so that Evans could escape from the prison in a very smooth way right in front of the eyes of the authorities. Why was a photocopied sheet carefully superimposed on the original blank page of the question paper? एक फोटोकॉपीड शीट उसके ऊपर ओरिजिनल ब्लैंक पेपर के ऊपर क्यों चिपकाई गई थी? वो इसलिए चिपकाई गई थी क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी गई थी कि एवंस को फाइनली कहाँ पे जाना है और कैसे वहाँ से निकलना है। So a photocopied sheet was carefully superimposed on the original blank page of the question paper because on that paper were instructions for Evans that where he had to reach finally and how he had to come out of the prison. Governor calls Jackson and Stephens morons. Who is really a moron? Governor अपने junior officers को जैक्सन और स्टीफन्स को morons means बेवकूफ़, मूर्ख बताता है, but actually में बेवकूफ़ कौन है? अब हम पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि सभी की गलतियाँ थी, लेकिन गवर्नर की सबसे ज़्यादा थी। उसकी सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसलिए थी कि उसने अपने ऑफिसर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, जबकि उसे पता था कि एवंस इतना नोटोरियस प्रिजनर है और जो पहले भी 3 बारी जेल तोड़ के भाग चुका है, उसे पर्सनली मॉनिटर करना चाहिए था। और फाइनल जो एस्केप था एवंस का, उसमें भी उसने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा कि वैन कौन चला रहा है, उसने ये भी वेरीफाई नहीं करा, उसे खुद एवंस को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए था। सो आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, दो गवर्नर कॉल्स Jackson and Stephens morons, but we feel that actually governor is a moron because he blindly trusted his prison officers, knowing that fact that Evans was a habitual jailbreaker. He should have been more vigilant. He should have monitored the whole operation himself. And even in the final escape of Evans from the hotel, he should have taken care about the credentials of the persons who were to drive the van and who were to take Evans to the prison. He should have in fact done it himself and not trusted anybody.
Who is Carter? Why did the governor call him? कार्टर कौन था और गवर्नर ने उसे किस लिए बुलाया? कार्टर पुलिस सुपरिंटेंडेंट था। गवर्नर ने उसे इसलिए बुलाया था कि जब एवंस जेल तोड़ के भाग गया था, वो ये चाहता था कि पुलिस उसे पकड़ के वापस ले आए। सो कार्टर वॉज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस एंड ही वॉज कॉल्ड बाय द गवर्नर टू असिस्ट हिम इन कैचिंग एवंस who had escaped from the prison for the 4th time. Was Evans really careless in leaving behind that question paper? क्या एवंस वाकई में अपनी लापरवाही दिखाता है जब वो क्वेश्चन पेपर पीछे छोड़ के जाता है? नहीं, वह लापरवाह नहीं था, वह बहुत ही समझदार और चालाक था। ये उसके एस्केप प्लान का पार्ट था जो कि अथॉरिटीज़ को ये कन्विंस कर देता कि वो यहाँ से किस जगह पे गया है। ये उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा था। So Evans was not at all careless in leaving behind that question paper, but it was a part of their master plan to misguide the authorities and let them believe that Evans had made a mistake. Now when Stephen comes back to the cell, he jumps to a conclusion and the whole machinery blindly goes by his assumption without even checking the identity of the injured McCleary. Does this show how hasty conjectures can prevent one from seeing the obvious? How is the criminal able to predict such negligence? स्टीफन्स जब उसे छोड़कर वापस आता है मैक्लेरी को और वो उसके सीधा उसके सेल में जाता है, उस कमरे में जाता है जहाँ एवंस था, तो वो इंजर्ड इंसान को देख के एकदम से ये बोल देता है कि ये मैक्लेरी को मार के भाग गया और सब उसकी बात को बिलीव कर लेते हैं। तो क्या इससे ये पता चलता है कि हेस्टी मीन्स जल्दी में लिए गए, कंजेक्चर्स मीन्स इमेजिनेशन, आप जिस चीज़ को पहले से ही सोच लेते हो, कैन प्रिवेंट वन फ्रॉम सीइंग द ऑब्वियस। अगर हम जल्दी में ऐसी कोई इमेजिनरी बात बोलते हैं, क्या वो हमें ऑब्वियस मीन्स जो चीज़ सामने नज़र आ रही है, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसको देखने से रोकती है? हाँ, ये हमें रोकती है। सो इस पार्ट का आंसर होगा यस। यस, हेस्टी कंजेक्चर्स कैन प्रिवेंट वन फ्रॉम सीइंग द ऑब्वियस। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का है, हाउ इज द क्रिमिनल एबल टू प्रिडिक्ट सच नेग्लिजेंस। क्रिमिनल जो वहाँ पे एवंस के लिए कहा गया है, वो ये सब चीज़ें कैसे प्रिडिक्ट कर पाया था। Now, Evans, we know, was a very clever person. He had lots of contacts outside and he was very good at analyzing. How is the criminal able to predict such negligence? So that means जो जुर्म करने वाला है, जो क्रिमिनल है, वो ये सारी चीज़ें पहले कैसे से जान लेता है कि जो प्रिजन ऑफिसर है वो इतनी बड़ी लापरवाही करेगा। नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही। एवंस एक बहुत ही चालाक किस्म का इंसान था, उसे ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से पढ़ना आता था। अब रूटीन में वो जब इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था तो उसे समझ में आता था कि ये लोग कहाँ कहाँ पे वीक हैं या इनकी क्या क्या कमज़ोरी है। उन कमज़ोरियों का उसने फ़ायदा उठाया और उसे ये पता था कि जब मैं एक इंजर्ड आदमी की तरह लेटूंगा तो इनके दिल में मेरे लिए दया होगी और ये बिना वेरीफाई करे कि मैं कौन हूँ या कौन नहीं हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेंगे। और उस हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में ही उसका वहाँ से भाग निकलने का प्लान था। सो the criminal was able to predict such negligence because he was a very clever and an intelligent person. He could analyze human nature very cleverly and very closely. Now, during his interaction with Stephen and Jackson, he could make out that they were very compassionate and had a bit of sympathy with him. They were very soft at heart, though they were very hard with him at times, but they were soft at heart. And Evans played on this weakness. He knew that when they would come back and see an injured person lying in a pool of blood, so instead of verifying his credentials, they would rush him to the hospital. And going out of the prison to the hospital was a
part of his plan, and that is how he had planned his escape from the jail. What could the governor have done to securely bring back Evans to the prison when he caught him at the Golden Lion? गवर्नर क्या कर सकता था एवंस को सेफली वापस लाने के लिए जब वो लास्ट में उसे होटल में पकड़ता है? Does that final act of foolishness really prove that he was just another good for a giggle? Good for a giggle means हंसने के काबिल गलिबल गवर्नर. गलिबल means जिसे बहुत जल्दी से पागल बनाया जा सकता है. That was all. कि क्या वो एक्चुअली में सिर्फ हंसी उड़ाने के काबिल एक गलिबल, जल्दी से मूर्ख बनाए जाने वाला ऑफिसर है? सबसे पहला पार्ट इसका, व्हाट कुड द गवर्नर हैव डन? गवर्नर क्या कर सकता था? गवर्नर अच्छे से उनकी जांच पड़ताल कर सकता था जो प्रिजन ऑफिसर्स बन के एवंस को लेने आए हैं, और अगर वो कहीं बहुत ही चालाक और समझदार इंसान होता, जैसा कि एक प्रिजन के गवर्नर को होना चाहिए, तो वो किसी को भी ट्रस्ट ना करता, किसी पे भी विश्वास ना करता और खुद एवंस को हथकड़ी ला के प्रिजन में डाल देता. लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो कुछ भी वेरीफाई नहीं करता. उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये होटल भी जो है उसके अपने ही लोगों का है. जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी एवंस की ही वाकिफ़ थी, और जो लोग उसे लेने आए थे वो भी वही थे जो उसके दोस्त थे, उसके साथ मिले हुए थे. सो इतनी बड़ी मूर्खता करने के बाद हमें ये लगता है कि जो गवर्नर है वो वाकई में बहुत ही गलिबल था, यानी कि बहुत जल्दी उसे मूर्ख बनाया जा सकता था, और वो गुड फॉर गिगल मीन्स हंसना, वो सिर्फ हंसी उड़ाने के काबिल था. ऐसे लोगों को प्रिजन का इंचार्ज बनने के काबिल नहीं होते हैं, इन्हें गवर्नर नहीं होना चाहिए. सो द गवर्नर कुड हैव सिक्योरली ब्रॉट बैक एवंस टू द प्रिजन व्हेन ही हैड गॉट हिम एट द Golden Lion finally by verifying the credentials of the person who had come to take him in the van, who had handcuffed him. He trusted them blindly. He did not verify their credentials, and he did not inquire from where they were coming and where they would take him, but he just trusted them to be one of the prison officers and sent Evans with them. And he could have actually handcuffed Evans himself and brought him back to the prison in his own car or in the official van himself. But he did not make any such effort, and this proves that he was just another good for a giggle, gullible governor who was befooled by a prisoner and his accomplices very easily. While we condemn the crime, we are sympathetic to the criminal. Is this the reason why the prison staff often develop a soft corner for those in custody? वैसे तो हम क्राइम को क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि हम उसे अच्छा नहीं समझते, लेकिन क्रिमिनल के साथ, जुर्म करने वाले के साथ हमें कहीं ना कहीं सहानुभूति होती है. क्या यही कारण है कि जो वो प्रिजन का स्टाफ है उन्होंने उन लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, दैट मीन्स उनके दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए दया पनप जाती है? ये सच बात है कि कोई भी बॉर्न नहीं होता क्रिमिनल, और वो इस दुनिया के सर्कमस्टांसेस से क्रिमिनल बन जाता है. वो जुर्म दुनिया में आके सीखता है, पैदा नहीं होता सीखा हुआ. और उसके हालात को समझते हैं लोग. जब वो प्रिजन में होता है तो डेली उसका प्रिजन ऑफिसर्स के साथ बातचीत होती रहती है, और उस बातचीत में कभी कभी घनिष्ठता भी हो जाती है. सो जब वो अपने हालात बताता है तो कभी ना कभी प्रिजन का स्टाफ जो है उसके लिए अपने मन में दया रखता है, और वो चाहता है, अंदर से चाहते हैं कि ये शायद बाहर निकल के सुधर जाए, और वो उसके लिए दया रखते हैं. और इसी दया का कई बारी क्रिमिनल्स जो हैं, जो जुर्म करने वाले हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं, एवंस जैसे लोग, और वो फिर से उनको
प्रिजन ऑफिसर्स को चकमा देकर भाग जाते हैं. सो वी श्योरली कंडेम द क्राइम बिकॉज इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन. बट at times we feel sympathetic to the criminal because we all understand that no human is born as a criminal. We become criminals, or the criminals do commit such crime because of their circumstances. And somewhere in their heart of hearts, even the prison officers have sympathy towards these criminals and want these criminals to rectify their mistakes. So they develop a soft corner for them. But people like Evans, who are very clever, they take advantage of this soft corner and they escape from the jail time and again, befooling the prison officers. Now, do you agree that between crime and punishment, it is mainly a battle of wits? क्या तुम इस बात से agree करते हो कि जुर्म और सज़ा के बीच में एक लड़ाई है जो कि समझदारी की लड़ाई है, चालाकी की लड़ाई है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि जुर्म और सज़ा के बीच में बैटल ऑफ विट्स है. दैट मीन्स कौन ज़्यादा स्मार्टली एक्ट करता है, उन दोनों की लड़ाई है, क्रिमिनल की और कानून की. सो इस स्टोरी से ये बिल्कुल साफ पता लगता है कि एवंस जो था वो एक क्रिमिनल था, गवर्नर जो था वो कानून की अथॉरिटी था, लॉ अथॉरिटी था, जो उसे पकड़कर सज़ा दिलवाना चाहता था. लेकिन एवंस उनको आउटस्मार्ट करता है हर मौके पे. उनकी हर इन्विजिलेशन, जितने भी वो स्ट्रिक्ट हो जाएं या वो जितने भी अपने आप को स्ट्रिक्ट समझते थे, एवंस उनकी हर प्लान को ख़राब करता था, थ्वाट करता था और उनको आउटस्मार्ट करके फाइनली वो भाग निकलता है, उनको मिसलीड करता है और फाइनली भाग निकलता है. Yes, we agree that between crime and punishment, it is mainly a battle of wits, which is very obvious from this story because Evans could outsmart the prison authorities on every occasion. He was a clever person who played on their weaknesses very well, and he had lots of links outside the prison. He outwitted them on every occasion and surprised them by finally escaping despite the strictest possible measures taken by the officers. And that's all about the question answers on this chapter. I'll be back in my next video on the next chapter. Thank you.